صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ گڈ ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ ضیاء میں۔ آج بات کرنے جا رہا ہوں یوریا کے بغیر فصل اگائیں۔ ہمارے ملک میں ایک عجیب مضحکہ خیز سٹوری بنی ہوئی ہے کہ جب گندم کی بجائی کا ٹائم تھا تو ڈی اے پی شارٹ تھی، مافیا نے کیا، گورنمنٹ نے کیا، جو بھی ہوا، بہرحال بجائی کے وقت ڈی اے پی شارٹ تھی، بہت مہنگی۔ پھر گندم کا پہلا پانی آ گیا جس کے بعد یوریا کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اب یوریا شارٹ ہے اور بہت مہنگے داموں بک رہی ہے، ٹکٹوں پہ بک رہی ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں، ہم ہر اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کی ہمیں ٹکے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم اس کو اپنا قبلہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم وہ کہتے ہیں نا کہ بتوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے اپنی خواہشات کے پیچھے کبھی ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، کبھی اپنی چاہتوں کے پیچھے ہم مٹے بیٹھے ہیں، یعنی اپنی سوچ میں ہی ہم گم ہیں، اپنے نفس میں ہی گم ہیں۔ نہ ہمیں اپنے ارد گرد کا پتہ ہے، نہ ہمیں ٹیکنالوجی کی کوئی طلب ہے، نہ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، نہ خدا کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے بندوں کو دیکھتے ہیں، کچھ ہم نہیں دیتے ہیں۔ اسلام سے ہمارا دور سے دور دور تک، یعنی اگر مسلمان کے گھروں میں ہم پیدا نہ ہوتے تو بخدا ہمارے اور غیر مذہب لوگوں میں یا غیر مسلم لوگوں میں کیا فرق تھا۔ یعنی ہم نام کی زراعت کرتے ہیں، زراعت میں ٹیکنالوجی کے پاس سے بھی ہم جانا مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ کچھ دوستوں کو میری باتیں ناگوار گزرتی ہوں، میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، اسلام کی بات کرتا ہوں، انسان کی بات کرتا ہوں، اسلام کا خلاصہ یہ ہے۔ دوستو، یوریا کے بغیر فصلیں اگائی جا سکتی ہیں، یوریا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا خواہ مخواہ میں وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا معیار ہم نے کم کر لیا ہے اس یوریا کی وجہ سے۔ حکومت، ڈیلرز اور محکمے، آفیسرز، یہ تین ہمارے مین پلر ہیں جو ہمارے ملک کی معیشت کو، زراعت کو تباہ کرتے ہیں۔ آج یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہوں، اگر میری بات میں فرق ہو تو میں ذمہ دار ہوں، اور یہ میں کوئی جذباتی ہو کے بات نہیں کر رہا۔ بہت سارے ڈیلرز ہیں، گلا منڈی میں چلے جائیں، 5 کی 5 نمازیں باجماعت یہ لوگ پڑھتے ہیں، سارا دن سود پہ کام کرتے ہیں، سارا دن سود پہ کام کرتے ہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے یہ بات کرتے وقت۔ سب سے زیادہ مومن آپ کو ڈیلرز ملیں گے، حکومت میں تو ہوتے ہی حاجی مومن ہے نا، انہوں نے تو ماشاءاللہ حکومتی وہ خرچے پہ ہی حج بھی کیے ہوتے ہیں۔ افسوس کی یہ بات ہے کہ ہم نے اسلام کے نام پر اپنے ملک کو، معیشت کو اور انسانوں کی روٹی کو بند کیا ہوا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، یہ لوگ مل کے یہ دھندا کرتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ کس چیز کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ایک پورے حلقے میں 1000 بوری مل گئی ہے جی یوریا کی، آج جی 2000 بوری مل گئی ہے ڈی اے پی کی، گودام سیل ہو گیا؟ سب ڈرامہ ہے۔ پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ادھر ادھر اتنی کھاد پڑے۔ مجھے یہ بتایا کہ جب کمپنی کی کھاد جب نکلتی ہے، کمپنی ایک بندے کو جب کھاد دیتی ہے، اس کی انوائس نہیں ہوتی ہے، کمپنی کو پتہ نہیں ہم نے کس بندے کو کتنی کھاد دی ہے، ہر بندے کی انوائس ہوتی ہے، ہر تحصیل اور ڈسٹرکٹ وائز ان کھادوں کی انوائس ہوتی ہے۔ یہ سب ان کے ڈرامے بازی ہیں۔ ان لوگوں نے لوگوں کا رزق بند کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ یہ وقت کے خدا ہیں، یہ خدا ہیں یہ لوگ، اور پھر یہ لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں کو پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مخلص ہیں۔ یہ خدا ہے، ان لوگوں نے آپ کا رزق روٹی بند کرنے کے لیے نا خدا بننے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ تو یوریا کے بغیر فصل آپ اگا کیسے سکتے ہیں؟ یوریا کے بغیر فصل آپ ایسے اگا سکتے ہیں میرے دوستو، اگر تو آپ کی گندم کی فصل کی اگر میں بات کروں، اگر گندم کی فصل ہے اور پہلے پانی پہ اگر آپ نے نائٹروجنی کھاد دینی ہے تو پھر کیا کرنا ہے، اور دوسرے پانی پہ کیا کرنا ہے، اور دوسری فصلوں کے لیے متبادل غور سے سن لیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ کام آئے گی۔ اگر تو گندم کو پہلے پانی پہ آپ نے کھاد دینی ہے تو فاسفورس بھی دینی ہوتی ہے، پوٹاش بھی دینی ہوتی ہے، سلفر بھی دینی ہوتی ہے۔ فاسفورس کی وجہ سے ہم کیلشیم، امونیم نائٹریٹ گوارا پہلے پانی پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں نہ ہی دینی پڑے، یا زبردست یوریا بھی ہم نہیں دے رہے ہوتے کہ چلے جی وہ ایک شائبہ رہ جاتا ہے، زنک ہوتی ہے۔ تو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ امونیم سلفیٹ لے لیں، یہ وافر مل جاتی ہے مارکیٹ میں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ امونیم سلفیٹ کو آپ نائٹروجن کے متبادل کے طور پہ استعمال کریں، اس کے اندر سلفر ہوتی ہے،
इसकी वजह से सल्फर नहीं आपने छोड़ देना, इसको भी सल्फर लगा के ही खाद देनी है। ये बड़ी टेक्निकल बात है, बहुत सारे साइंसदान फिर खड़े हो जाते हैं। जैसे पोटाश के अंदर सल्फेट है ना, SOP सल्फेट ऑफ पोटाश है, तो पोटाश में अगर सल्फर है ना तो इसके बारे में बड़ी वजाहत से बयान कर चुका हूँ, वो आपके काम की नहीं है। अमोनियम सल्फेट वाली भी सल्फर आपके काम की नहीं है। इसमें नाइट्रोजन होती है, ये यूरिया का मुतबादल है, सल्फर का मुतबादल नहीं है। वो है, बड़ी क्लियर कट बात कर रहा हूँ। अमोनियम सल्फेट यूरिया का मुतबादल है, सल्फर का मुतबादल नहीं है। पोटाश का मुतबादल है, सल्फर का मुतबादल नहीं है। बड़ी दो टोक बात मैंने कर दी है, क्यों है ये मैं अलग बात करूंगा, कर चुका हूं, बल्कि इस पे मेरी वीडियोस भी हैं। बहरहाल नए दोस्तों को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो सल्फर के बारे में मेरी जो वीडियोस है ना, सल्फर के करिश्मे, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, सल्फर के इस्तेमाल के बारे में भी बताई हुई है, उसको डिटेल में देख लें। मुख्तर यह है कि अमोनियम सल्फेट का ये जो सल्फर होता है, पोटेशियम सल्फेट का जो सल्फर होता है, ये आपके पौधे को नहीं मिलता है। ये एलिमेंटल फॉर्म में होता है या फिर बहुत जल्दी लीच डाउन हो जाता है, या फिर कह रहा हूँ यानी दोनों ऑप्शन है, लीच डाउन हो जाता है, फसल को नहीं मिलता है। सल्फर आपने लाजमी देना है। बहरहाल यूरिया या नाइट्रोजन का एक सोर्स क्या है, अमोनियम सल्फेट ले लें। अब आ जाती है गंदम के दूसरे पानी की बारी। दूसरा पानी कब लगाते होते हैं हम जिम्मेदार, क्या करते हैं, आज लगा पहला पानी, सुबह लगा दूसरा पानी धड़ाल, ये आप लोगों का कुलिया है। हम क्या कहते हैं, आज लगा पहला पानी, फिर सो जाए सुकून से, को महीना निकाले, कम से कम 3 से 4 हफ्ते ठहरे, फिर दूसरा पानी दे। अल्हम्दुलिल्लाह वो गोब के करीब पहुंच चुकी होती है फसल। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, हमारे जिम्मेदार जो है ना, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि अगर इन्हें चांद पे भेजने की कोशिश की जाए तो ये एक ही दिन में चांद पे पहुंच जाए। अच्छा, दूसरा सोर्स क्या है कि दूसरे पानी पे आपने गंदम को ना फास्फोरस देनी होती है, ना पोटाश देनी होती है, गोब के करीब इतनी बड़ी टेंशन नहीं होती। गोब पे जाकर, पीक गोब पे जाकर फास्फोरस थोड़ी सी देनी होती है, पोटाश के साथ आखिरी एप्लीकेशन है। तो 40 से 60 दिन या 70 दिन की फसल को आपने देनी होती है सिर्फ ही नाइट्रोजन, यूरिया देनी होती है। वहां पर आप गवारा इस्तेमाल कर सकते हैं, केन गवारा खाद जो है वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। वहां पर आप जबरदस्त यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूट्राफिल यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जाफर वालों की है न्यूट्राफिल यूरिया। कोई भी आपको नाइट्रोजनी सोर्स मिले दूसरे पानी पे तो आप बगैर किसी फिक्र के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाती है बारी कपास की है, मकई की है, आलू की है। तो कोशिश किया करें कि जब आपने अकेली नाइट्रोजन देनी हो, सरसों को भी जैसे हम दे रहे होते हैं, तो उस वक्त आप गवारा, जबरदस्त यूरिया, न्यूट्राफिल यूरिया दे लिया करें। जब आपने अकेली नहीं देनी होती है नाइट्रोजन या यूरिया, बल्कि इसके साथ आपने फास्फोरस या पोटाश देनी है, तो अमोनियम सल्फेट के साथ मिक्स कर लिया करें। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाता है, कुछ डेजर्ट के ऐसे एरिया है, रेगिस्तानी इलाके हैं, या बहुत डिस्टेंट, बहुत दूर इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहां खाते अवेलेबल ही नहीं है। वहां पर मेरे दोस्त क्या करें, वो स्प्रे की तरफ आ जाए, कुछ ना कुछ फोलियर स्प्रे कर लिया करें। बड़ी एक माशाल्लाह ट्रेनिंग की है दोस्तों की, पुठार रीजन में आगे पीछे दोस्तों ने थाल के बेल्ट में फोलियर स्प्रे की तरफ मेरे दोस्त आ रहे हैं। मैं खुल के अभी दोस्तों को खुद नहीं मोटिवेट करता, मेरा एक मकसद है कि अभी फर्टिगेशन सीख जाए, हम तजाबी खादों पे आ जाए, अगले मरले फिर आपको फिर फोलियर खादों की तरफ ले आएंगे। यानी ये मैं आपको 1 साल 1.5 साल हो गया यही बात कर रहा हूँ, खादे बता दी हुई हैं सारी फोलियर, मैंने अभी उस पर लाता नहीं हूँ। वक्त वक्त लगता है, वक्त लगता है। जिद्दत जो है ना, जल्दबाजी का नाम नहीं है, जिद्दत एक टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली का नाम है। तो इसको बड़े तरीके से हम लेकर चल रहे हैं। तो यूरिया का कोई इतना बड़ा हमारा वो किबला काबा नहीं है। क्यों आज ये बात मैंने की, इससे पहले मैंने DAP की मोम चलाई थी 1 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह धुएं निकाल दिए मैंने इस DAP के। और आज मैंने ये तैयार कर लिया है कि आज जुमे की नमाज पढ़ के मैं आया हूँ, इस यूरिया के मैं अब घुटने लगवाऊंगा। इन खादों ने, एक DAP और एक यूरिया, हमारी ज़राअत का किबला जो है, हमारे किसान की रोटी बंद की हुई है। ये ऐसे बदवक्त लोग हैं। अब अफसोस की ये बात है, हमारी सरकारी कंपनी ने जो ये खादें दे रही हैं, DAP भी और यूरिया भी, और बड़े अफसोस से ये मैं कहना चाहूँगा, ठीक है ये बात मेरी बहुत बुरी लगेगी कुछ दोस्तों को, हकीकत यह है कि आधी ये दोनों खादें हमारे फौज के दायरे हैं जो दे रहे हैं। क्यों हो रही है ये ब्लैक, क्यों हो रही है ये ब्लैक, इसकी पता चलना चाहिए इस चीज़ का। ये डीलर्स को खुद दी जाती है, खुद स्टॉक करवाई जाती है, सियासी लोगों को दी जाती है, इन महकमे के लोगों को कहा जाता है, ऑफिसर्स को कहा जाता है कि अपना मुंह बंद रखो, आपने नहीं बोलना। पैसे लेते हैं वो लोग, नमाज भी पढ़ते हैं, पैसे भी लेते हैं। इसलिए बड़ा तकलीफ हुई मुझे आज ये बात करते वक्त। तो मेरे दोस्तों, इस यूरिया को बाय बाय, आप इसको भी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे।
बड़े मुतबादल हैं इसके, अमोनियम सल्फेट है, केन ग्वारा है, ज़बरदस्त यूरिया है, न्यूट्रल और बड़े हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है। वो इतनी बड़ी ये चीज़ नहीं है कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें ये 2 नंबरी हमेशा होगी, कभी भी बंद नहीं होगी। ये आप या मैं इस 2 नंबरी को नहीं रोक सकते। जब तक मैं समझता हूँ, आज ऑन द रिकॉर्ड ये बात मैं करना चाहता हूँ। मुझे मेरे एक बड़े बुजुर्ग, एक बड़े पेस्टिसाइड के बंदे ने एक बात कही थी, मैं उस वक्त जॉब करता होता था। उन्होंने कहा था कि सिंध में अगर किसी हिंदू से माल लेना हो ना तो बड़े फख्र से ले लेना, 2 नंबरी नहीं करेगा। लाहौर के किसी मुसलमान से माल ना लेना, पक्की शर्तिया बात है, 2 नंबरी करेगा। ये तो हमारे ईमान का लेवल हो चुका है ट्रेड में और एग्रीकल्चर में। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के दौर में लोग पहचाने जाते थे अपनी ईमानदारी की वजह से। हम तो 5 नमाजें पढ़ते हैं, सूद का कारोबार कर रहे होते हैं। हमारी नमाजों की तो ये वैल्यू है, हम अल्लाह के सामने हर नमाज में पता नहीं किस मुंह से होके आ जाते हैं। हर गल्ला मंडी में जितनी सूद और जितना झूठ और जितना मैं समझता हूँ 2 नंबरी का काम होता है, पता नहीं वहाँ सबसे बड़ी जमात भी वहाँ हो रही होती है। तो ये इस्लाम पे क्या धब्बा नहीं है? क्या ये तकलीफ दे बात नहीं है? क्या पैगाम जाएगा पूरी दुनिया में? जापान और चीन वाले क्या कहेंगे कि ये नमाज पढ़ने वाले लोग हैं? शर्म आनी चाहिए हमें। और हम लोग, मैं कहता हूँ बेहतर हैं वो लोग जो नहीं पढ़ते हैं, एटलीस्ट बेईमान तो नहीं है, लोगों का हक तो नहीं खाते हैं, लोगों के साथ जुल्म तो नहीं करते हैं। क्या करना है यार ये चीजें को करके? हमने जिम्मेदार की फसलें तबाह कर दी हम लोगों ने। लानत भेजता हूं मैं अपनी हुकूमत पे और हुकूमती हिकमत अमली पे। यानी सबसे बड़ी जो फूड सिक्योरिटी का मसला है वो हमारी वीट है, गंदम की फसल है, और उस पर हमारे पहले डीएपी को ब्लैक किया गया और फिर क्या किया गया, यूरिया को। क्या सो रही है हमारी हुकूमत? सो रही है क्या ये हुकूमत? सब ड्रामा है, सब ये सब एक गेम है। इनका काम है अपनी पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना। मैं बरमला ये कहता हूं कि ये हुकूमत आपकी मईशत को भी तबाह करेगी, आपकी रोटी को भी बंद करेगी। मेरा किसी नून लीग से, किसी पीपी से कोई मेरी रिश्तेदारी नहीं है। वो भी यही थे, फराडिये थे, ये भी फराडिये हैं। चोरों को पड़ गए मोर। जब ये हुकूमत आई थी ना, मैंने ये कहा था इन लोगों ने हमारी ज़राअत को बर्बाद करके रख दिया। मैं कहता हूं इन लोगों ने हमें, यानी गरीब लोगों को देखें, पाकिस्तान में कौन से लोग मुतासर हुए हैं? 2 लोग मुतासर हुए हैं, एक सरकारी मुलाजम और एक रेडी वाला गरीब बंदा। दोनों के चूल्हे बंद है। कभी जाके तो देखें शहरों में बाइकियां चला रहे हैं यार लोग, मजदूर लोग बाइकियां चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? वो सफेद पोश लोग हैं बेचारे, क्या करें? बच्चों का पेट पालने के लिए चला रहे हैं। तो ये इसके पीछे क्या फैक्टर है? 2 तबके तबाह हो रहे हैं ना, एक दिहाड़ीदार, एक मजदूर और एक मुलाजम। कारोबारी बंदे को तो कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। मेरी तरह ये पहन के आ जाते हैं, हमें क्या है यार? हमें तो किसी इंसानियत का तकाजे का पता ही नहीं है कि इंसान भी क्या होते हैं, कौन भूखा मर रहा है, जी रहा है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं है। दोस्तों, जब नमाज पढ़ते हो, मुसलमान हो यार, खुदा का खौफ करो। ये ब्लैक मेलिंग, ये यूरिया की शॉर्टेज, सब धंधा है, बड़ी वाफर मौजूद है। एक मैसेज आया जी कि ये अफगानिस्तान में जा रही है, डॉलर रेट आई होता है तो अफगानिस्तान चला जाता है, यूरिया शॉर्ट होती है तो अफगानिस्तान चली जाती है। ये नहीं ठीक होगा ये सिस्टम, खुदा की कसम मेरे जैसे लोगों को मुल्क छोड़ना पड़ जाएगा, ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। क्यों? हम ठीक ही नहीं है, हमारे पेट में हराम के लुक में हम किसानों को ही देख लें। आज किसान दोस्त भी मेरी ये बात सुन लें, क्यों रोते हैं आप ये रोने? वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, औरतों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन चुके हैं, आपके नहीं बने हैं। इतने बड़ी पाकिस्तान की इंडस्ट्री एग्रीकल्चर की क्यों नहीं बने हैं? यही तो है कि पहला बीज है आपको बर्बाद करने वाला। कभी सुने आपने कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स? मैं 1 साल से ये कोशिश कर रहा हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाना है, किसानों का चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाना है। वही किसी को फिक्र ही नहीं है। बड़े बड़े फार्मर कहते हैं, वो कहते हैं पता नहीं पैसे खा जाएगा, लूट जाएगा। कितने का खा जाऊंगा यार? आपको अपने पेट की फिक्र नहीं है? बड़ी बुरी लगती है आपको मेरी बातें, हो सकता है, पर आप अपना पेट नहीं देखते ना। हमें अपनी फिक्र ही नहीं है। यूरिया को बिल्कुल बाय बाय बोल दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अमोनियम सल्फेट पे आ जाएं और गंदम के दूसरे पानी पे आप केन ग्वारा इस्तेमाल करें, जबरदस्त यूरिया इस्तेमाल करें, न्यूट्राफिल यूरिया इस्तेमाल करें, कोई ले लें इसका मुतबादल, कोई ले लें, अल्लाह पाक फजल करेगा। बहरहाल बड़ी तकलीफ के साथ आज ये मैंने वीडियो बनाई है। आप आज मेरे दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं। खुदा की कसम अगर आज मेरे बास में होता ना तो मैं सिर्फ इस पूरे प्रोग्राम में आज मैं अपनी हुकूमत पे, अपने डीलर्स पे, ये जो हुज्जाज हैं, ये जो नमाजी हैं, मेरा दिल करता है मैं इतना जहर उगलूं, मैं इतना जहर उगलूं कि मैं खुदा की कसम यहाँ पर, ये मेरा आज आखिरी वीडियो,
دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر دوں. یار یہ ہمارا مسلمان ہونے کا معیار ہے کیا؟ یہ ہمارا اسلام نے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہمیں یہ چیز بتائی ہوئی ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے اپنی اس نماز پہ، اپنے مسلمان ہونے پہ. ہم سے جاپان کے لوگ اچھے ہیں، میں کہتا ہوں ہندوستان کے ہندو اچھے ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں، بتوں کے آگے جو گرتے ہیں. ان کو اپنے بت پہ یقین ہے، ہمیں اپنے خدا پہ یقین نہیں ہے. ہمیں اپنے ایمان پہ، اپنے معیار پہ، اپنے وقار پہ شرمندہ ہونا چاہیے اور اس کی تصحیح کرنی چاہیے. شرم سے ڈوب کر مار جانا چاہیے ہمیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ہمیشہ خوش رہے، سلامت رہے. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کے کسانوں کو ترقی دے، عزت دے اور گرو کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.